that we are cherishing together, right? So we all are working here, we all are studying here, we all are putting our best effort just to reach there. Always remember this quote: one day you will have to introduce yourself as AIMS nursing officer. Hello students, a very good afternoon to all of you. How are you all? Good afternoon Sona, good afternoon Kusha. Very good afternoon to all of you. I hope everyone is doing great. Right. Okay. So students, here we are again for these Saturdays insights with the RMN Margdarshak. As we are always going to conduct this session on every Saturday to provide you the valuable insights. So to provide the special guidance and all. So firstly, I would welcome you all to the Nursing Next Live, and let's begin this exciting journey and work together towards shaping your future. As we always say that your success is our motto, right? And we all are working to achieve the NORCET 8, right? So what is today's session agenda? That is, in this session, we are going to discuss the importance of TOC, that is Table of Content, and the KYS form. I hope everyone has received the TOC and KYS form, right? Am I audible to everyone? Please confirm. Thank you so much, Pallavi, for confirming. Yeah, so moving ahead with the discussion of today's agenda, that is the importance of TOC and KYS form. Second is WhatsApp channel link. Third is we are going to discuss the 5 toppers of ANSET 1 prelims. I hope the students are well aware that ANSET 1 prelims was conducted. So the 5 toppers of that test we are going to discuss in this session. Fourth is the students who are not attempting the TAT. As per the progress report, जो students अभी TAT attempt नहीं कर रहे हैं, that all उनका list भी we are going to discuss in this session. Fifth is the strategy of how to control the negative marking. इसके लिए तो सब बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि मैम हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव मार्किंग. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. Sixth is the final round, that is the open Q&A round. Okay, so this is the agenda of this session. After this, students, this slide I have add here because I really want to remind you, like this is the dream that we are cherishing together, right? So we all are working here, we all are studying here, we all are putting our best effort just to reach there. Right, everyone? Guys, this is an interactive session and you can also unmute yourself. If you want to say anything now, you can also say. So the main motto of adding this slide in this, I just really want to recall you all कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पे लैग चल रहा है, that you are not practicing that much जितना आपको अपने NORCET preparation में करना चाहिए था, थोड़ा भी आपको demotivation आ रहा है. So just to motivate you, I have added this slide, I have added this building to recall you again that this is the dream that we all are cherishing together. Right, everyone? So we all have to put the best effort just to reach there. Good afternoon, Ritika. Yeah, so here your relationship manager, I'm your relationship manager. My name is Shailja Sharma and you all are connecting with me for all your queries and guidance. I am committed to provide you the proper guidance and counseling at every step. So if you need any help and any guidance from my side, you can just call me or WhatsApp me, however you are comfortable with me. You can ask your queries. And your most favorite faculty, Sabina Ali ma'am. Yeah, she is your batch mentor. I hope everyone is aware about that. Right? Say yes or no in the chat box. Who all know that Sabina ma'am is your batch mentor? I hope everyone knows, right? Great. Okay. So here, Vishali ma'am is in this session also. Vishali ma'am is your Margdarshak. She is conducting the weekly interaction session with you.
and addressing your queries regarding the scientific queries and all, and the content what we are providing you. So I would request Vishali ma'am, please introduce yourself. I think there is some network issue at her end. Let me just check it once. Till then, let's move ahead with the session. Here is the TOC and KYS form. Students, please confirm सबने TOC go through कर लिया है, and have you all filled this KYS form? KYS form is the know your student form. I hope जिन students ने ये form fill कर दिया है उन सबको master stroke book deliver हो चुका है, right? And the students जिसने अभी तक ये form fill नहीं किया है, please fill out your form. This is mandatory to fill this form. And this TOC, I hope everyone has got this either in soft copy or hard copy. जिसको hard copy मिला है, that's great, because this TOC is very helpful for you in finding this like what you are getting in this Plan MLB Pro Earth batch. That complete content is mentioned in this TOC. So kindly go through this very thoroughly. Next is your WhatsApp channel. The students who haven't joined this channel yet, please join this channel. This is the link also. If you want, you can just ping me on WhatsApp also. I'll share you the WhatsApp channel link, because all the updates are being shared in this WhatsApp channel only. Okay. So now here is the the most awaited moment, who all wants to know, ma'am, who is the ANSET 1 prelims topper. So these are the students, these are the 5 toppers of the ANSET 1 prelims. Nishtha Tripathi, who scored 71.72 marks out of 100, and her percentage is also 71.72. And Ritika Chopra, Suman Gupta, Jayati Mandal, Sameer Ahmed Dar. So I really want to congratulate to all these students. And I really want कि सब जितने भी students यहाँ पर इस session में हैं, and all the students in the Earth batch, I really want सब अच्छा score करो, अच्छे अच्छे से marks लेकर आओ. And this was your first test, right? ANSET 1 prelims, जिसमें आपका complete syllabus का test था, and this was your 100 questions का ये test था. So this was the first test, but in the upcoming test, make yourself prepared. And I really want जिन students का नाम अभी इसमें नहीं है, I really want to, मेरे को ये ढूंढना पड़े कि किस किस के नाम मुझे इस slide में रखने हैं. I know that you all are putting your best efforts. Okay, so students, now these are the students who are not attending the test. सबके साथ मैंने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर किया था, राइट? सो आई होप एवरीवन सबने उसको गो थ्रू किया होगा, चेक किया है सबने प्रोग्रेस रिपोर्ट? प्लीज कंफर्म. There are 26 participants in this session and no one is confirming. मतलब किसी ने भी चेक नहीं किया है प्रोग्रेस रिपोर्ट what I have shared with you all. Only Somdata has checked. Shruti, स्निग्धा, ओके ग्रेट. सो मतलब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने चेक किया है. ओके, आदर्श ने भी किया है, अंजलि ने भी किया है, ग्रेट, परफेक्ट. सो स्टूडेंट्स देखो, अभी एज पर दैट प्रोग्रेस रिपोर्ट व्हाट आई हैव चेक कि यहाँ पर जिस जिस स्टूडेंट्स के नाम मेंशन है, दो स्टूडेंट्स आर नॉट अटेम्प्टिंग द टेस्ट, द टैट एक्चुअली टॉपिक असेसमेंट टेस्ट, जो आपका एवरी डे कंडक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस डे क्लास. सो आई रियली वांट कि सब स्टूडेंट्स जो इस बैच में हैं, जो भी क्लासेस ले रहे हैं, जो भी आपकी लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, या फिर आप चलो लाइव भी नहीं कर रहे हो, जो स्टूडेंट्स वर्किंग हैं, दोस हु आर अटेंडिंग द रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टूडेंट्स यू हैव टू अटेम्प्ट द टैट. दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन एनालाइजिंग जो क्लास आपने अटेंड किया है उसमें से कहाँ पर अभी लूप होल है, जहां पर जिस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, राइट? सो आई रियली वांट, आई विल बी मोर देन हैप्पी जब ये स्लाइड जो होगा ना, यहाँ पर कोई नाम नहीं होगा मेंशन करने के लिए.
सो आई रियली वॉन्ट, प्लीज जिसका भी नाम यहाँ पर है, प्लीज टेक आउट योर नेम। एंड नेक्स्ट टाइम जब ये सेशन में हम यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, यहाँ पर किसी का नाम नहीं होना चाहिए। अग्री और नॉट? You can mute and unmute yourself in this session. Thank you, Kavita. Yes, ma'am. Great. Thank you so much for acknowledging. Okay, students, so this is the major update which I want to share with you all. That is the test and discussion. I hope everyone is aware about this. Like from 18th of December, the test and discussion is going to start with 4 approaches, right? First one is your revision, second is your test, third is your discussion, and fourth is your revise again. Okay, so what we are doing in this test and discussion, firstly, we are going to revise a particular subject. Okay, let me explain you the complete approach. Isko dhyan se sunna. What we are doing in the test and discussion, firstly, we are going to revise the particular subject. Okay, then on that particular subject, we are going to conduct the CSAT. Okay, CSAT is your comprehensive subject assessment test. राइट सो ये आपका उसी जिस सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, फिर उसी सब्जेक्ट पे हम आपका सीसैट कंडक्ट किया जाएगा। देन ऑन दैट सीसैट वी आर गोइंग टू मेक अ डिस्कशन, लाइक आपका एक डिस्कशन होगा जिसमें वीडियो डिस्कशन होगा उसी सीसैट का, जो सीसैट में क्वेश्चंस हैं। एंड देन स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आफ्टर डिस्कशन ऑल्सो, दैट यू कैन रिजॉल्व इन द लाइव डाउट सेशन। So in short, there are 4 approaches. First one is revision. Second is your test, which is CSAT, Comprehensive Subject Assessment Test. Third is the discussion on CSAT. And fourth is your resolve. Resolve means live doubt sessions. Clear everyone? Any doubt till now? मैम Yes, ये ma'am, रेगुलर clear. बेसिस पे होगा या फिर Sorry? मैम ये रेगुलर बेसिस पे होगा या फिर इसका ये वीकली Schedule होगा. I'll be sharing with you. Don't worry. Okay? Okay, ma'am. यस Okay, मैम thank थैंक you यू so much. Okay, now let me just check if Vishali ma'am is there in the session. हाँ, कविता मैम आरआरबी के लिए भी सीरीज स्टार्ट होगी. If there will be any series for RRB Kavita, I'll surely update you regarding that. Okay, so Vishali ma'am is joining us within a minute. Till then, please students, tell me how your studies are going on right now, what all you have studied. Everyone is going, everything is going good, or you are facing any issue? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am, audible. यस मैम Ma'am, test and discussion classes तो live class के साथ ही चलेगा ना? हाँ हाँ, मैं आपको अपडेट करूंगी उससे रिलेटेड, डोंट वरी. मैम और हमें मास्टर स्ट्रोक का मैम फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट अभी तक नहीं मिला मैम, उसका कोई अपडेट? हाँ हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आई बी जैसे ही डिस्पैच स्टार्ट होता है मैं आप सबको अपडेट कर दूंगी. ठीक है, दैट इज Okay, इन द ma'am. प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट दैट. Okay, so Vishali ma'am is there in this session. Apart from this, students, we will be having a Q&A round after this discussion of how to control the negative marking by your margdarshak. ठीक है, so let's move ahead with this session. Vishali ma'am is here. So from here, I want to hand over to you, Vishali ma'am. Thank you, Ms. Shelja. Thanks a lot. So, hello everyone. Very good evening. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Good ma'am. afternoon, ma'am. यस Very मैम, good गुड afternoon. आफ्टरनून। So, अभी जो भी मैं आपसे सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे उसका चैट बॉक्स में आंसर चाहिए. क्या आप लोगों की प्रिपरेशन, कैन यू गाइस से प्राउडली कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन ट्रैक है? अकॉर्डिंग टू योर नॉर्सेट सिलेबस, क्या आप सबकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है? एंड आर यू गाइस यूटिलाइजिंग योर टाइम वेरी नाइसली? जितना आपका दिन है, उस पूरे दिन को क्या आप 100% यूटिलाइज कर रहे हो अपने नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए? नो, एवरीबडी इज सेइंग नो. डियर, नेक्स्ट टाइम जब हम कनेक्ट करें, यहाँ पे नो नहीं होना चाहिए.
ठीक है, जितनी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपके जो शैलजा मैम है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं जस्ट टू अचीव योर टारगेट, उन सबका कोई रेलेवेंस नहीं है अनलेस आप उस गोल की तरफ नहीं बढ़ रहे, आप कुछ अपना इनपुट नहीं डाल रहे। ठीक है, हम बोल देते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं, एक्चुअल में उन चीजों को इम्प्लीमेंट आपको ही करना है, राइट? सो प्लीज स्टार्ट लर्निंग। अगर अभी भी नहीं यूटिलाइज कर रहे हो उस टाइम को बहुत अच्छे से, तो प्लीज स्टार्ट कर दो, बिकॉज नाउ वी हैव वेरी लेस टाइम। ठीक है, बहुत कम दिन हमारे पास बचे हैं, नॉर्सेट हमारा 12 अप्रैल को है टेंटेटिवली। ठीक है, आज जो हमने थीम रखा है डिस्कशन का, दैट इज हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। आई नो वेरी वेल कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका री अटेम्प्ट है ये नॉर्सेट का, और उन सबका मेन जो इशू रहा है जिस वजह से नॉर्सेट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, दैट इज नेगेटिव मार्किंग। बहुत ज्यादा हो जाती है, नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत गलत हो जाते हैं, इसीलिए आई केम अप विद दिस थीम टुडे कि हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। ओके स्टूडेंट, सो हियर इन दिस स्लाइड आप सबको यहाँ पे बहुत पॉइंट्स दिख रहे होंगे काफी सारे। अब इन पॉइंट्स का मीनिंग क्या है एक्चुअली, बहुत अच्छे से इस स्लाइड को समझ लेना आज। ठीक है, क्योंकि अभी जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने पूछा सबने मुझे यही बोला कि हम नॉर्सेट के लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, या हम अपने टाइम को यूटिलाइज 100% नहीं कर रहे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखा है गोल विदाउट डेडलाइन, विच मीन्स कि अगर आपके पास गोल है, आप सबको पता है आपको नॉर्सेट में सीट चाहिए, लेकिन आपने उसके लिए कोई टारगेट नहीं बनाया। ठीक है, कोई आपने खुद को डेडलाइन नहीं दी कि मुझे इसी नॉर्सेट के अंदर एनी हाउ रैंक लानी है, अपना सिलेक्शन अपने डिजायर्ड स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां पे मुझे एम्स चाहिए ही चाहिए। जब तक आप एक डेडलाइन खुद को नहीं देंगे, वो गोल सिर्फ और सिर्फ एक फैंटेसी है, इट्स नॉट अ एग्जैक्ट प्रॉपर परफेक्ट गोल। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल प्लस डेडलाइन। अगर आपने अपने उस गोल के अंदर डेडलाइन डाल ली कि हाँ मेरे को ये गोल अचीव करना है, टिल दिस टाइम मुझे लाइफ में ये अचीवमेंट चाहिए ही चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव, कि वो आपके लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव है। बट अगर आप उसके अंदर एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लान ऐड करते हो, ठीक है, तब वो बनता है कि वो एक आपकी इंटरनल इंटेंशन है। ठीक है, लाइफ को लेके आपकी एक इंटेंशन है कि आपको ये गोल अचीव करना है, आपके पास उसकी डेडलाइन भी है और आपके पास एक उसका प्रॉपर प्लान भी है। एंड अगेन, प्लान है साइड में पड़ा है, लेकिन जब तक हम उसके ऊपर एक एक्शन नहीं करेंगे उस प्लान का कोई यूज नहीं है। जब हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं, ऐसा तो नहीं कि खाना हमारे मुंह में अपने आप आ जाता है, राइट? इसी तरह से गोल है, डेडलाइन भी है, हमने प्लान भी बना दिया, लेकिन अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना है, कंसिस्टेंटली एक्शन करना है, उस प्लान के ऊपर वर्क करना है, ओनली देन यू विल गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। जैसे आप सबका गोल है नॉर्सेट 8 के अंदर अपनी रैंक अचीव करना। एंड लास्ट पॉइंट इज मीनिंगफुल गोल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जस्ट गोल है, हमने आज सोचा हमें कुछ अचीव करना है, बैठे बैठे रैंडमली थॉट आया और हमने उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, डेडलाइन लगा ली, लेकिन एक्चुअल में उस गोल का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, सो गोल ऑलवेज शुड बी मीनिंगफुल, उसमें डेडलाइन होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और प्लान के साथ में आपका कंसिस्टेंट एक्शन होना चाहिए, only then your goals will be fulfilled। ठीक है, सो अब बिना वेस्ट अपना टाइम वेस्ट किए हुए नॉर्सेट की प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाओ, बिकॉज टारगेट इज क्लियर, आप सबको नॉर्सेट में रैंक चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी अगर हम इसी एटीट्यूड के साथ में आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ द टाइम इज वेरी लेस, बट यस, जो इस टाइम को बहुत क्वालिटी के साथ में अपना यूटिलाइज करेगा वो डेफिनेटली नॉर्सेट में सेलेक्ट होगा, और अपनी जिस भी जो भी रैंक चाहिए, अपर रैंक चाहिए, 1 2 3 में रैंक चाहिए, हो सकता है आप में से ही कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जो बिल्कुल टॉप रैंक में आ रहा हो। ठीक है, फिर आपकी भी फोटो हाईलाइट की जाएगी।
हर जगह पे आपको बुलाया जाएगा, फेमस भी हो जाओगे एंड एट द सेम टाइम जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपने एक्शंस को ध्यान रखो, टाइम बिना वेस्ट किए हुए बिल्कुल कंसिस्टेंटली एक्शंस को फॉलो करो। ठीक है, मैम इस वॉइस okay, so now let's start. Okay, so now let's proceed to our main point of discussion, that is how to control negative marking. Okay, so जब भी हम negative marking control करने की बात करते हैं, it is basically in two phases. टू फेजेस में ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एक तो है आपका प्रिपरेशन फेज, जिस टाइम पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आपने नोट सेट दिया नहीं है बट आप देने जाओगे, तो अभी हम क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारी नेगेटिव मार्किंग हो ही ना, और अगर होती भी है तो बहुत कम परसेंटेज हो, अगर नेगेटिव मार्किंग हमें कंट्रोल करनी है। सो इन दैट केस आपका अभी ये प्रिपरेशन फेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, की एग्जाम आप दे रहे हो, आपके सामने आपका सीबीटी हॉल, आप सीबीटी हॉल में बैठे हो, आपके सामने आपका कंप्यूटर है और आप उस कंप्यूटर पे अपने आंसर्स क्लिक कर रहे हो, उस टाइम पीरियड में किस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर सकते हो। ये दो तरह की स्ट्रेटेजी है जो आज हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज की। थैंक यू। ओके, सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज में सबसे पहले तो आपको पता है, आपको अपने एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, आपको एग्जाम की मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए। किस तरह का एग्जाम पैटर्न आता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, या फिर वन लाइनर टू लाइनर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप एक एग्जाम का पैटर्न समझ लोगे, उसके बाद उसकी मार्किंग स्कीम देखनी है। मार्किंग स्कीम लाइक अगर सही होता है तो ऐड कितना होगा, और अगर नेगेटिव होता है तो कितने मार्क्स हमारे सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द स्पेसिफिक मार्किंग स्कीम। आपने बहुत थॉरोली उसकी पूरी एग्जाम की मार्किंग स्कीम समझ ली। आफ्टर दैट फोकस ऑन ऑल इम्पोर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक, जितने भी आपके हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, आपके साथ में लिस्ट शेयर हुई है, वो ऐसे टॉपिक्स हैं दैट आर अनअवॉइडेबल। आप अभी जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो नॉर्थ सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको उन अनअवॉइडेबल टॉपिक्स को बिल्कुल बिना इग्नोर करे हुए उनको इतना थॉरोली कॉन्सेप्चुअलाइज कर लीजिए, ताकि अगर उसका क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाए, 360 डिग्री में कहीं भी एग्जामिनर घुमा दे, आपको उसका आंसर आता होगा। ठीक है, देन स्टे काम एंड अवॉइड स्ट्रेस। अभी जो आपका प्रिपरेशन फेज है, इसमें बिल्कुल काम होके स्ट्रेस ना लेके ही प्रिपरेशन होती है। अगर हम अपने ब्रेन को बहुत ओवरली स्ट्रेस कर लेंगे, ब्रेन एट द एंड आके इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि ब्रेन बोलेगा अब मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज आप रहने दो। ठीक है, सो ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमेशा काम में रखो। जब लगे कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया आज, अब ब्रेन मेरा बिल्कुल ड्रेन हो चुका है, बर्न आउट हो चुका है, जस्ट गिव योरसेल्फ अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, बिल्कुल रिफ्रेश करो खुद को, जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है, बहुत शॉर्ट ब्रेक लेना है, बहुत लॉन्ग ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है, और साथ में खुद के साथ में गेम भी नहीं खेलनी है कि कोई बात नहीं आज छोड़ देता हूँ, आज थका हूँ, कल से स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, देन मेक योर वीक एरियाज, सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग। जितने भी आपके वीक एरियाज है, आप जब भी डेली टैट भी देते हो, ठीक है, आप जो भी क्लासेस डेली लेते हो, उसमें से आपको खुद पता है, सेल्फ एनालाइज करो आपके कौन कौन से वीक एरियाज हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें यू नीड मोर नॉलेज। ठीक है, आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए समझ आ जाता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे अभी मेरा बहुत कुछ है जो पेंडिंग है, जो मुझे अभी कवर अप करना है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। सो ऐसे एरियाज को एनालाइज करो, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रिपरेशन फेज के अंदर। जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके वीक एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, आपकी थ्योरी पूरी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको एग्जाम का पैटर्न पता होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पता होगी, मार्किंग स्कीम, जब ये सब चीजें पता होंगी, तब आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको धीरे धीरे ये चीज दिख जाएगी, अपने खुद ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि हाँ मेरी नेगेटिव मार्किंग डेली के टेस्ट में भी कम हो गई। ठीक है, बेसिक पता है, मॉडरेट लेवल पता है उस कॉन्सेप्ट का, एडवांस लेवल पता है, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन हॉल में व्हेन यू गाइस एंटर, यू एंटर विद अ लॉट ऑफ फियर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, राइट? सबको होती है एंजाइटी,
No one is commenting. Okay, so it's a one-way discussion today. Yes. Yes, ma'am. यस ओके सो एंजाइटी सबको होती है उस एंजाइटी प्रेशर और स्ट्रेस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ के भी जाते हैं बट अपना स्कोर इम्प्रूव नहीं कर पाते ठीक है और वहां पे उस प्रेशर में वो नेगेटिव स्कोर ज्यादा लेके आते हैं सबसे पहले तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन बिल्कुल काम माइंड होके जाना है कोई स्ट्रेस नहीं लेना एंड वंस यू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल किसी से अननेसेसरी चिटचैट नहीं करनी ठीक है अपना बिल्कुल फोकस होके एग्जाम अटेम्प्ट करना है नाउ जैसे ही आपके एग्जाम आपके कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम स्टार्ट होगा एग्जाम स्टार्ट होते ही वहां पे सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है एग्जाम ठीक है एज ऑफ नाउ अभी तक जो एम्स का था वो वही है एज इट इज जो लास्ट नॉर्थ सेट में था 5 सेक्शंस होंगे ठीक है और उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही 20 क्वेश्चंस होंगे फॉर 18 मिनट्स अभी तक यही है अगर नोटिस चेंज होता है तो वो पता लग जाएगा जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन विल बी आउट बाय डायरेक्टली फ्रॉम एम्स ठीक है टिल देन हमें इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है सो जब आपका फर्स्ट सेक्शन अपीयर होगा उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे आपको सबसे पहले क्या करना है आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखते हुए ही समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन जो है ये जो पेपर है ये किस लेवल का है बेसिक है मॉडरेट है या एडवांस है अगर आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल तक का है बेसिक टू मॉडरेट है आपको क्या करना है और क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट हैं ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है आपको क्या करना है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो 100% श्योर है 100% श्योर मींस क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ गया कि इसका आंसर एग्जैक्ट यही है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ऑप्शन सिर्फ 100% की है उसके बाद जब 20 तक सारे क्वेश्चंस देख लिए नाउ अगेन कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन जिस क्वेश्चन से आपको लग रहा था जो आपने बीच में छोड़े जिसमें आपको डाउट था 50% 70% सही है या थोड़ा गलत हो सकता है या कहीं दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है अब आपको दोबारा से फर्स्ट क्वेश्चन पे आना है अपने क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ वो वाले जो आपने छोड़े थे जिसमें आपको डाउट था जो आपने ऑलरेडी कर दिए उसको चेंज नहीं करना लास्ट मोमेंट पे आके जब हम अपना आंसर चेंज करते हैं वही गलत होता है सबसे ज्यादा आंसर हम वही गलत करते हैं जब हम अपना आंसर चेंज करते हैं तो वो चीज कभी भी नहीं करनी ठीक है सेकंड को के अंदर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आपको डाउट था कि कहीं दो ऑप्शंस करेक्ट दो में कहीं ना कहीं आपको डाइसी लग रहा था कि ए करेक्ट है या बी करेक्ट है इस टाइप से आपने वो कर दिया उसके बाद अगर टाइम बचता है आपको अननेसेसरी अब दोबारा से अपने जो ऑलरेडी आपने आंसर्स कर दिए सबमिट कर दिया आपने उसको नहीं देखना ठीक है आंसर्स कर दिए छोड़ दो उसको देखोगे फिर दिमाग में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स बनेंगे दिमाग रैशनलाइजेशन करने लगेगा हर क्वेश्चन का और वहां पे आके भी आंसर चेंज होगा सो इसीलिए आंसर एक जो कर दिया उसको कभी चेंज मत करना अगेन रिपीट दिस इन द सेकंड सेक्शन पहले एनालाइज करना है लेवल ऑफ एग्जाम बेसिक है मॉडरेट है या एडवांस है अगर आता है एडवांस लेवल ट्राई करना है एक ही अटेम्प्ट में पूरा पेपर कवर करना है लाइक 20 क्वेश्चंस है तो एक ही अटेम्प्ट में मेरे 20 क्वेश्चंस हो सबसे ज्यादा टाइम उन क्वेश्चंस को सबसे पहले तो टाइम उन क्वेश्चंस पे ज्यादा लगाना है जिन क्वेश्चन में आपको 50 to 70% डाउट है अपनी थ्योरी को अपने कॉन्सेप्ट को अपने प्रिपरेशन फेज में इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वहां में आपका टाइम बच सके ठीक है एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं मोस्ट प्रोबेबली हमारे मेंस एग्जाम में तो उसकी स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस करेंगे बट दिस इज योर टाइम जब आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने के लिए बेसिक जो आपका पिलर है प्रिपरेशन का आपकी स्ट्रेंथ होने वाली है वो है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी थ्योरी ठीक है अभी उसको स्ट्रॉन्ग करना है ठीक है नाउ यहाँ जो पॉइंटर्स लिखे हैं जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शंस आएंगे सो यू हैव टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस देन यूज एलिमिनेशन मेथड जहां कंफ्यूजन लग रहा है जहां डाइसी लग रहा है वहां पे आपको ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा थोड़े अपने ब्रेन में कॉन्सेप्ट वापस से रिकॉल करने पड़ेंगे कि मैंने कौन सा टॉपिक कहाँ पढ़ा था क्या थ्योरी थी क्या रैशनल था सारी चीजें समझोगे देन यूज एलिमिनेशन मेथड ठीक है देन फर्स्ट एनालाइज द लेवल ऑफ एग्जाम बेसिक मॉडरेट एडवांस्ड दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू गाइस कि किस तरह से हमें एनालाइज करना है उसके बाद में अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करनी है क्वेश्चंस इन 1 और 2 कोर्स ठीक है टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल वहां पे आपको वॉच ले जाने भी अलाउड नहीं है ठीक है लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर वहां पे टाइमर आता है
सो टाइम आपको एग्जामिनेशन हॉल में कंटिन्यूअसली चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर टाइम चला गया तो आपका वो जो आंसर जो सेक्शन चल रहा है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड अवॉइड लास्ट मिनट हसल, जैसा मैंने कहा लास्ट मिनट प्रेशर में आके जो आंसर चेंज होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है अभी 10 मिनट एग्जाम खत्म होने सबमिट होने में बचे हैं, दोबारा से कोई पेपर का आंसर देखने की जरूरत नहीं है, जो हो गया उसको वहीं छोड़ना है, चेंज नहीं करना। कोई नया आंसर लास्ट में जब पेपर खत्म कर लिया बिल्कुल लास्ट में कोई क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा हुआ है उसको अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। ना ही कोई आपको वहां पे तुक्का मारना है, किसी भी तरह का कोई तुक्का नहीं मारना। नेगेटिव मार्किंग इन सब चीजों को फॉलो अगर आप करेंगे प्रॉपरली तो आपकी नेगेटिव मार्किंग इवेंचुअली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड यू कांट अज्यूम कि बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग ना हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि हमारी बिल्कुल 0% नेगेटिव मार्किंग हो। कुछ ना कुछ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट नॉर्सेट, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब एग्जाम्स के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स डालते हैं कि उस एग्जाम का लेवल जो वो कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है। इसीलिए बहुत रिलैक्स होकर अपने इस प्रिपरेशन फेज को यूटिलाइज करो। दिस इज योर टाइम, गोल्डन टाइम, जिसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आपकी नॉर्सेट के अंदर रैंक भी आएगी और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, ठीक है। सबको समझ में आया हाउ यू गाइस कैन कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग? Yes, ma'am. Okay. Now you guys can ask your questions in the मैम chat box or you guys. कितने क्वेश्चन Dear, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम प्री के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब कि सही होना? कितने अटेम्प्ट करने चाहिए आप ये पूछ रहे हो? हाँ जी मैम जी। देखो बेटा, जब भी हम कोई भी पेपर की तैयारी करते हैं सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में कभी मत लाना कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आपके पास में 100 क्वेश्चंस आते हैं सपोज हमारे नॉर्सेट के एग्जाम, ठीक है, अगर उन 100 क्वेश्चंस के अंदर आपको 90 के 90 क्वेश्चंस 100% आते हैं, ऑफ कोर्स आप अटेम्प्ट करोगे। लेकिन अगर आपको 70 क्वेश्चंस ही आते हैं, आप वहां पे बहुत ज्यादा डाइसी लग रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो सिर्फ आपको लग रहा है 20% ही सही हो सकता है, मुझे थ्योरी याद नहीं है, तो आप वहां नहीं करोगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये स्ट्रेटजी बनती है हमारी एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। सो अभी ये चीज आपको माइंड में नहीं रखनी कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये मेरा सबके लिए है मैसेज। बिल्कुल माइंड में ये चीज ना रखो कि मुझे सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नॉर्सेट एग्जाम से पहले बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे वायरल होती है कि हमें इतने ही क्वेश्चंस करने चाहिए, आप इस कैटेगरी से हो तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटजी दैट यू आर मेकिंग इन दैट एग्जामिनेशन हॉल। अगर आपको पता है, आपको सारी थ्योरी आती है और आपके सारे क्वेश्चंस आप श्योर हो 100% कि मेरे सही हैं, तो you guys can click on all the answers। अगर कॉन्फिडेंट हो 100%, अगर डाइसी है वहां पे आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज होगी, जहां पे क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड दैट टू डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस कि आपको उस क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट में कितना कॉन्फिडेंस है कि आपको वो 100% आता है, 70% आता है, 50% आता है या 10% आता है, ठीक है। सो अभी सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, ठीक है। Any other queries, students? If you have, you can come up and ask your queries because your class is also going to start. Any other general query or scientific query you are having, please come up, students. मैम टैट के साथ हमें मतलब डे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए मतलब? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? मैम जैसे हम मॉर्निंग में टैट अटेम्प्ट करते हैं उसके अलावा मतलब एक्स्ट्रा कितने क्वेश्चन हम पर डे अटेम्प्ट करें इससे मतलब नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो? क्वेश्चन अगर आप बिगिनर हैं तो आप 50 से स्टार्ट करिए, बट अगर आप पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो आप अपने एक दिन में टारगेट रखिए 200 टू मोर देन 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और उसके साथ में आपको एक और चीज ऐड करनी है, जो भी आपके क्वेश्चंस नेगेटिव होते हैं, जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको सिर्फ देख के पढ़ के समझ के छोड़ना नहीं है, उनको लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को लिखना स्टार्ट करते हैं वो हमारी परमानेंट मेमोरी में सेव होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो साइमल्टेनियसली टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में अपने नेगेटिव आंसर्स को लिखना भी स्टार्ट करो, ठीक है। ओके ओके, एनी मोर क्वेरीज? अगर किसी को सामने आके पूछने में प्रॉब्लम है, आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, चैट बॉक्स में डाल दो अपना क्वेश्चन।
Please say yes or no, students, so that this time can be used for other part. If you don't have any query, please write in the chat box that ma'am, no, we don't have any query. Thank you so much, Sondata, for confirming. मैम एक जस्ट मैम जो क्वेश्चन के लिए जो बुक्स हैं एक तो आपने सेंड की वो है मतलब करने के लिए, और एक मैम जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो हमारे पास 2 बुक हुए हैं मेरे पास, है ना। तो इनके अलावा कोई और बुक मतलब कि रेफर करनी हो क्वेश्चन के लिए फिर, या फिर जो अपने टाइप 3 चीजें, तो इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा कुछ और फिर एक इनफ है? इनफ इज नथिंग। ये Yes, लाइन right. हमेशा याद रखना, इनफ इज नथिंग। आप जितने मर्जी मल्टीपल सोर्सेज रेफर कर दो, ठीक है, एट द एंड जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना वो हमारी थ्योरी से ही होंगे। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ इसीलिए करते हैं, सिर्फ इस विजन से करते हैं कि हमें हमारे जो थ्योरी है, जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वो हम अपने थ्योरी और नॉलेज किस तरह से क्वेश्चंस में इम्प्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस विजन के साथ, इस मोटिव के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जिस भी सोर्स से करो। आई विल नॉट रेकमेंड एनी स्पेसिफिक बुक जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सारी बुक्स ठीक होंगी, लेकिन मेक श्योर कि वो वैलिड हो, उसके अंदर जो डाटा दिया हो वो बिल्कुल रिलायबल हो, वहां पे कुछ गलत ना हो, ठीक है। मैम एक जो मतलब जो क्लिनिकल क्वेश्चन होते हैं वो मैम 3 से 4-5 लाइन के होते हैं, उनको मैं कैसे करता हूँ, उनको छोड़ दो मतलब पढ़ो ही नहीं टाइम की वजह से वो जो नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी एक तरीका है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, अगर आपने कोई ऐसी बुक ले रखी है जिसमें 2 to 4 लाइंस के क्वेश्चंस है, मतलब आप इस तरह से प्लान बनाओ कि आप एक दिन में ना सिर्फ 20 क्वेश्चंस उस बुक से लो। ज्यादा क्वेश्चंस एक बार में मत करो उस बुक के। साथ में आप अपने बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कहीं और से अगर पढ़ रहे हो वहां से करो, और उसके बाद में आप 20 क्वेश्चंस उस लेवल के करो, एडवांस लेवल के करो उस बुक से जो भी आप रेफर कर रहे हो। एक दिन में 100 क्वेश्चन 4 लाइंस के मत करो, दैट विल बी अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। जी मैम वो एमएससी की बुक है मैम, उसमें क्या क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिए हुए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ छोड़ दो, मतलब काफी टाइम ले जाते हैं समझने में, उनको करने में फिर टाइम काफी निकल जाता है उसको मतलब। देखो, अगर बेटा वो नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बुक है, ठीक है, हाँ तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स उससे स्ट्रांग होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ नॉर्सेट नहीं करना, आपको और भी चीजों के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, ठीक है, और थ्योरी को आपको और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप एक दिन में 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन उस बुक के कर सकते हो डेली। ज्यादा नहीं, कम रेशियो रखो जितना आप कर सकते हो। ये तो मैंने टेंटेटिव नंबर बताया आपको, 20-15 समथिंग, ठीक है। So here let's move to the next part of this session. That is in the matlab in the beginning of this session I told you what is the dream what we are cherishing together, right? So anyone can tell me what we are cherishing, what we are dreaming together? मैम एम्स Right. एम्स नो 8 So I can consider only Somdata was listening at that time. मैम हमारा तो ESI अलवर है। किसका है ESIC? मेरा मैम अंकित। अंकित. Okay. And anyone? और कोई है जो अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? Apart from Ankit? Yes, ma'am, NORCET or RRB. RRB But you are preparing for NORCET, na? Mainly NORCET, right? Okay, great. So Yes, ma'am. students, as I told you in the beginning of the session, that is our dream, that is AIMS, right? We all are working for the AIMS NORCET 8, and that is the goal what we have to achieve, right? So कभी भी आपको लगता है कि अभी मैम डिमोटिवेशन होते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल भी आते हैं दैट मैम डिमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, टेस्ट मतलब जब हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, टैट करते हैं एनएनसैट करते हैं तो हमारे मार्क्स बहुत मतलब हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कोट, जब भी आप प्रैक्टिस करने में थोड़ा लैग करोगे ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस कोट, वन डे यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज एम्स नर्सिंग ऑफिसर, right? So this will boost up your energy, boost up your confidence, so that you will get up again and you have to practice and learn again to achieve the NORCET 8,
Yeah, so always remember this code because we want every student of this Earth batch, we want to introduce them. Yes, this is the students जिसने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से कोचिंग लिया है एंड जिसने जो हमारे अर्थ बैच के स्टूडेंट थे एंड शी और ही इज द नर्सिंग एम्स नर्सिंग ऑफिसर राइट नाउ. Who all want this? I think everyone want this, right? Yes, ma'am. Great. So we all have to do this. We all have to achieve this. Keep this in your mind. We all are working for this. We all are preparing for this. The complete Nursing Next Life team is with you. Where you are lacking, we all are with you. Okay. Please connect us if you are facing any issues or any scientific or any general issues. We are always there for you. But remember, we have to crack NORCET 8. Okay. देन सबका इंटरव्यू भी तो कंडक्ट कराना है ना. ये जितना अभी सब लोग कैमरा ओपन करने में शाय हो जाते हैं, बोलने में शाय हो जाते हैं, तब इंटरव्यू तो करना पड़ेगा सबको, जी राइट? Yes, ma'am. Okay, perfect. Okay, students, one more thing which I want to share with you all. Please, मैं आप सबको फीडबैक्स फॉर्म शेयर करती हूँ, राइट? सो इतने सारे स्टूडेंट्स में से मेरे पास सिर्फ 10 या 12 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपने फीडबैक शेयर करते हैं. जब मैं आपसे सेशन में आगे अपफ्रंट होके आपसे पूछती हूँ कि प्लीज टेल मी योर कंसर्न्स, तब आप मुझे अपने कंसर्न्स बताते हो. बट जब मैं आपके साथ फीडबैक फॉर्म शेयर करती हूँ कि प्लीज शेयर योर फीडबैक, कहाँ पर आप लोग चैलेंजेस और कंसर्न्स फेस कर रहे हो, दैट टाइम सिर्फ 10 to 12 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे फीडबैक शेयर करते हैं. प्लीज टेल मी, इज दिस राइट? Is this right practice? No, ma'am. प्लीज, इसीलिए देखो सब आपको सब पता है कि ये सही नहीं है, तो प्लीज अपनी प्रैक्टिस मेंटेन करो. whatever feedback I am asking for, whatever feedback form I am sharing with you, please Yes, share your ma'am. feedback Feel करती because हूँ, ma'am. हाँ सोमदत्ता, आई नो आप करते हो. बट रेस्ट स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म, प्लीज शेयर योर फीडबैक. प्लीज मेक श्योर आप अगर फीडबैक नहीं शेयर करोगे, वी विल नेवर गेट टू नो what challenge you are facing. Okay? Clear everyone? Yes, ma'am. Great. So I hope this session was very helpful for you. Yes, ma'am. Is the session helpful? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So on every Saturday, we will be coming up and will conduct this Saturday Insight with RM and Margdarshak. Please join us on every Saturday. Why we choose the day Saturday? Because we want to know in the complete week what challenge or concern you are facing. Is the complete मतलब जो पूरे week की classes थी वो आप लोगों की कैसी रही, जो test थे वो कैसे रहे. So we want your complete analysis of the week. Okay, so that's why this session will be conducted on every Saturday. Please join the session on every Saturday. And always remember this code. One day you will have to introduce yourself as AIMS Nursing Officer. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, thank you so much, students, for joining the session. And all the very best for your preparation. And now your class is started. Please join the class.